Friends, today we will read poem number 2.3, The Twins. And before explanation of the poem, we will solve some warming up activities through chit chat and other pre activities. In chit chat, it has given number 1, two babies born at the same time are called twins. The babies who will get birth or who are getting the birth at the same time, they are called as twins. We will call in our mother tongue judwa. But guess and share who are, लेकिन पहचानो कि ये कौन है जो यहाँ पर नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको क्या कहेंगे? लाइक ट्रिपलेट्स, quadruplets and quintuplets. There are 3 terms. Now I will explain you. The term triplets means the baby is born at the same time. How many babies? 3 babies who are getting birth at the same time. The 3 babies in a time, they are called as triplets. In the same way, quadruplets is like the same time 4 babies get birth or they are getting birth at the same time, they will be called quadruplets. In the same way, the third term is quintuplets. Quintuplets is the term which used for the 5 babies who will getting their birth at the same time. So this is the some information for us. We just know about twins, but there will be, if nature permits, if God permits, there will be anything happen. So triplets, quadruplets and quintuplets, these are the different terms like twins. Number 2, I am getting chit chat activity. Number 2 is, imagine you had identical twin, brother or sister. You have identical twin, like same or as looks like a you in your feature and form. Imagine and share with your classmates what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. What prank you can play with the elders or with your relatives or with your brothers or different cousins or in your schoolmates, classmates. What you can do? Imagine if your mother is cooked something and she put it in the kitchen and your brother came and ate it. He has taken it and you came there, you have not eaten that, and your mother understand that, she will consider that you have taken or stolen that things and you will be punished for that. So these are the different things can happen in the family. In school also, it will be, if you are in the same class, if you have not done the homework, your brother will be punished. If your brother had not done anything, you will be punished for it, you will be blamed for that. So anything can happen with the twins who looks alike, same in feature and form or in their faces. Now number 1, study the following pairs or groups of words. There are some group of words like cup and saucer. We use cup and saucer with each other. Needle and thread, like sui and dhaga, it called as in our mother tongue. And birds and beast, charinde or parinde, we called it in our Urdu Zaban. Take a risk, sip tea coffee, hide and seek, etc. These are the common words which we can use in the pairs. Now number 2, these are sets of words that more than often go together and occur together. These are some words which can go together or occur together. Call such sets collocation, and this is called as collocation, like cup and saucer, needle and thread, hide and seek. These words which we can use them with each other is called as collocation. Now we have to solve. Insert the proper words from the bracket in form of collocations. Now there are some words, I will read it first. Afford, time, defeat, clothes, honors, necessary, role.
and H is interview, number I morning, and the last word is cold. Now we have to use these words below with the other words. The correct word will be used with each and every word. Like I will tell you absolutely what you will use the word absolutely necessary. F will be the right answer for that. Absolutely necessary. Number B is cannot. Cannot, what you will use with cannot? Afford. Afford means हैसियत, औकात. Cannot afford, बोलते हैं ना, I cannot afford this car, I cannot afford this bike. मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता. फॉर्मल, हम फॉर्मल कहाँ पर यूज़ करते हैं? आमतौर पर क्लोथ्स के लिए. तो डी आएगा इसका सही आंसर, सी का, फॉर्मल क्लोथ्स. डी जॉब. जॉब के साथ क्या आएगा? इंटरव्यू, है ना. इंटरव्यू दिया हुआ देखो यहाँ पर, इंटरव्यू नंबर एच पर. तो जॉब के साथ लिखेंगे इंटरव्यू. पास, व्हाट यू विल से? पास टाइम. यस, यू कैन राइट बी नंबर, टाइम, पास टाइम. एफ एक्सेप्ट डिफीट, हार कबूल करना, एक्सेप्ट डिफीट. अर्ली मॉर्निंग. यस, वेरी गुड, अर्ली मॉर्निंग. कैच कोल्ड. लीडिंग रोल. जी, हाँ, जी नंबर, लीडिंग रोल. जॉइंट ऑनर्स, ई. So these are the words which we can use them with each other in their pairs. They are called as collocation. Now number 3, exaggeration. This is the figure of speech, and it has given with an example and definition what the figure of speech has given in the poem. It has shown before in the pre-activity or before the poem. Exaggeration और overstatement, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, बहुत ज़्यादा जो है शेखी बघारना जिसको कहते हैं उर्दू में अपने, तो उसका अगर इस्तेमाल होता है किसी पोएम के अंदर और लाइन में, ऑफन कॉजेज ह्यूमर, कई मरतबा ये जो है हंसने पर हमें मजबूर कर देती हैं लाइंस. जैसे कि उर्दू का अगर हम शेर उर्दू का अगर कोई शेर देखेंगे हम, तो जैसे था पानी कमर कमर, है ना, यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था सातवें आसमान तक पानी कमर कमर. दिस शेर इज़ a very big popular share for the sanat mubaligha we used in our Urdu zaban, or in English we use the figure of speech. What is this? Exaggeration or hyperbole. We will call it hyperbole. So hyperbole example has given in this poem. For example, she is thin as a pin. वो पिन की तरह कैसी है? बहुत ज़्यादा दुबली है. Now he has a pea-sized brain. उसका दिमाग तो मटर के दाने की तरह है, बहुत छोटे दिमाग का है. मशहूर किलिंग मी, जूता काटता है ना हमारा, जूता काटने को यहाँ पर क्या कहा गया कि मेरा जूता मेरा कत्ल कर रहा है, मुझे मार रहा है. व्हेन सच एग्जैगरेटेड, जब इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई लाइन्स होती हैं किसी पोएम में, ऑकर इन पोएट्री, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. वो एग्जाम्पल्स हैं, वो मिसालें हैं. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की? हाइपरबोल. वो हाँ, हाइपरबोल की एग्जाम्पल्स हैं, उसकी मिसालें हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट below. A, I am reading it. Number A sentence, and there are some words into bracket in the last line: horse, lion, death, an ocean, ton, second, and help. Now I am reading first sentence. Please just careful what word will be used from the last bracket, last lines. Which word you can use in the fill in the blank. She wept dash of tears. वो इतना रोई कि आंसुओं का. Yes, an ocean. In the first sentence the word will come an ocean. बढ़ा चढ़ा कर बात कही, इतना रोई कि समंदर बन गया उसके आंसुओं का. The hungry man at a dash of food. The hungry man of dash of a
food. Just a minute, boys, girls. Yes. Where is that? Yes, okay. Sometime it happens. B number sentence. The hungry man at a dash of food, ton of food. एक भूखा आदमी जिसके सामने 100 सैकड़ों किलो का खाना जो है आ गया. He was faster than a dash. Now what will be the faster? You can use horse. Yes, he runs faster than a horse. I am freezing too. अरे इतनी ठंडी है कि मुझे मौत गले लगा रही है. ऐसा लग रहा है मैं मौत को गले लगा रहा हूँ. I am freezing to death. Yes, it will come death. ज़्यादा सर्दी के लिए ये वर्ड, ये सेंटेंस को यूज़ किया जाता है. I shall come over in just a second. अरे बस एक सेकंड में मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं जबकि ये चीज़ बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कही गई है. तो इस तरह से यहाँ पर हाइपरबोल के जो है इसके बारे में इसकी डेफिनेशन भी और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं. अब हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ. द ट्विन्स. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से सेम हो बहु दिखने वाले दो चेहरे हैं. जुड़वा जिसको हम कहते हैं अपनी मादरी ज़बान में, द ट्विन्स उसको कहा जाता है इंग्लिश में. तो उसके ऊपर किस तरह से जो है दोनों की ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है. हाउ वॉज द कन्फ्यूजन क्रिएटेड इन देयर लाइव्स एंड व्हाट द प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज दे आर फेसिंग in their lives. That has shown very nicely and humorously by the poet in this poem. Now I am reading the poem first, then we will see the explanation of the poem. In form and feature, face and limb, I grieve so like my brother, that folks got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus you see my fate's decree, or rather nurse whim. My brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dodged my footstep when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? What would you do if you were me, to prove that you were you? Next page, last stanza. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbor came and buried brother John. And when I died, the neighbor came and buried brother John. So this is the poem. Very humorous, very comic in style. Now the first line we will see. You will also laugh when you listen this poem. In form and feature, face and limb. Even in a form, even in a feature, even their faces and their limb, nothing is different with each other. They are look alike, very, very, very much same. Nobody can differentiate them. कोई उनको जो है अलग है इस तरह से नहीं कह सकता था, ना कोई पहचान सकता था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. उनकी शक्लों में, उनके हाव भाव में, उनकी खूबियों में, उनके चेहरे में, हर तरह से दोनों हू बहू नज़र आ रहे थे ये दोनों भाई. आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, और मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह ही जो है बढ़ रहा था.
जैसे मेरे अंदर चेंजेस आ रहे थे वैसे ही सेम चेंजेस मेरे भाई के अंदर आ रहे थे। दैट फोक्स गॉट टेकिंग बिफोर हिम, कई मर्तबा लोग मुझे लेकर जाते थे उसे समझकर, मतलब वो समझते थे कि वो मेरे भाई को ले जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो मुझे पकड़ लेते थे। फोक्स मतलब लोगों को कहा जाता है, द पीपल। एंड ईच फॉर वन अनदर, और हर बार ऐसी एक दूसरे के ऊपर हमारे वो जो है परेशान होते थे। इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन, किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव्स, रिश्तेदार। तो हमेशा कंफ्यूज पजल्ड रहते थे, उलझन में पड़े होते थे कि आखिर दोनों में से असली है कौन, जिससे हम बात करना चाहते हैं वो कौन है। दोनों परेशान होते थे। इट रीच अ फियरफुल पिच, कई मरतबा उनकी चीख निकल जाती थी कि वो जो मेरे बारे में बताना चाहते थे वो मेरे भाई को, वो मुझे ही बता देते थे मेरे बारे में, और उनकी अचानक से डर के मारे चीख, पिच, आवाज़ निकालना डर से। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, क्योंकि हम दोनों में से एक जो है वो जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, हमारी रूह तक को पता नहीं कि हम दोनों में से असली है कौन, आखिर मैं कौन हूँ, वो कौन है, क्या वो मैं हूँ या वो मैं वो हूँ। इस तरह से दोनों जो है कंफ्यूज रहते और सारे लोग भी उनसे जो है बहुत ज़्यादा उलझन में पड़े रहते कि आखिर ये है कौन दोनों में से, असली को पहचाने कैसे, नकली को पहचाने कैसे, जॉन को कैसे पहचाने या दूसरे को कैसे पहचाने। ये दोनों तमाम लोग, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जितने भी आसपास के लोग थे, सब इससे परेशान थे। ये हो गया पहला स्टांजा। अब पहला स्टांजा अगर देखेंगे इसका फिगर ऑफ स्पीच, तो पहले स्टांजा में पहली लाइन में दिया हुआ लिम और उसके बाद है ब्रदर, तो लिम को देंगे ए, ब्रदर को देंगे बी। अब लिम और हिम सेम आवाज़ वाले हैं, हम आवाज़ हैं, सेम साउंड करते हैं, तो इसलिए लिम को जो हमने ए दिया था यहाँ पर तीसरी लाइन में हिम को भी ए ही देंगे। वैसे ब्रदर और अनदर दोनों सेम साउंड करते हैं, तो इसलिए जहाँ पर बी दिया था हमने ब्रदर को, वहाँ अनदर को भी बी देंगे। तो कैसे हुआ, ए बी। नाउ किथ, यहाँ पर किथ एंड किन, किन दिया हुआ है, किन और पिच, इसको देंगे किन को सी, क्योंकि सबसे अलग है ये इसलिए उसको सी आएगा, और पिच ये सबसे अलग है इसके लिए इसको डी देंगे, तो सी डी हो गया। किन और ट्विन दोनों हम आवाज़ हैं, तो इसलिए उसको जो हमने किन को सी दिया था तो ट्विन को भी सी देना पड़ेगा। उसी तरह से पिच और विच दोनों सेम साउंड करते हैं, सेम हम आवाज़ हैं, तो पिच को हमने क्या दिया था, डी दिया था, तो इसको क्या देना पड़ेगा, डी देना पड़ेगा। इस तरह से पहले स्टांजा की जो राइमिंग स्कीम है यहाँ पर वो याद रखिए अच्छे से, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बाकी के स्टांजा की लाइंस भी सब यहाँ पर जो है राइमिंग स्कीम सेम ही रहेगी इस पोएम में। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन तो बात इतनी बिगड़ गई, मामला इतना बिगड़ गया, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, जब हमारे पेरेंट्स हमारे नाम रखना चाहते थे और नाम रखने की रस्म जब रखी गई थी, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, हमारी जो नर्स थी, हमारी जो आया थी, उसने हमको जो है उसने जो जब नहलाने के लिए ले गई हमको दोनों को साथ में, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, उसने हम दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं कौन हूँ मेरे उसके समझ में नहीं आ रहा, और मेरा भाई कौन है उसके समझ में नहीं आ रहा, इस तरह से मिक्स हो गए दोनों। एंड दस यू सी, और आप देखिए आगे क्या होता है, बाय फेट्स डिक्री, हमारी किस्मत का और बुरा जो यहाँ पर होना था, डिक्री होना था, और अदर नर्स विम, या फिर नर्स की जो है ये विम थी। विम का मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अ सडन चेंज ऑफ माइंड, अचानक से दिमाग को तब्दील कर लेना, चेंज कर देना। उसने जो है उसका दिमाग चेंज हो गया, उसका दिमाग घूम गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, और इसकी वजह से माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी, or rather nurse Vim, my brother John got christened me and I got christened him. First of all, the term Christian means the ritual of putting a name of a baby. किसी बच्चे का जब नामकरण होता है, जिसको नाम की रस्म कहा जाता है, उसको क्रिस्टियन कहा गया यहाँ पर, नामकरण की रस्म को करना। तो उस नामकरण की रस्म पर उसके भाई जॉन को जो है उसका नाम मिला, और उसको जो है उसके भाई का नाम मिला। जो पेरेंट्स चाहते थे कि इसका नाम ये रखें, उसका नाम वो रखें, लेकिन दोनों के नाम क्या हो गए, उसी वक्त चेंज हो गए। तो पैदा होने के साथ ही इनकी जो परेशानी थी, जो उनकी उलझने थी, वो शुरू हो चुकी थी। दिस फटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, ये किस्मत और ज़्यादा बुरी उस वक्त हुई, हालात उस वक्त ज़्यादा बिगड़ गए, डॉज्ड हो गए। माई फर्स्ट स्टेप व्हेन एट स्कूल, जब मैं कदम रखता था अपने स्कूल में, जब मैं दाखिल हुआ तो उस वक्त, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड,
और लोग सब मुझे जो है घेर कर खड़े होते थे, क्योंकि मेरे भाई ने कोई शरारत की हुई होती थी तो लोग समझते थे कि वो मैंने किया है, तो वो सब मुझको फ्लॉक करके, मुझको जो है घेराव डाल के, मुझे गैदर करके मेरे अतराफ़ में सज़ा देने के लिए खड़े हो जाते। फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल, उनको कौन फूल बनाता था? जॉन बनाता था फूल, लेकिन वो लोग मुझे समझ बैठते थे, तो जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ लेते थे। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, और अक्सर करके जब मैं परेशानी में फंस जाता था उसकी वजह से, तो मैं लोगों से पूछता था फ्रूटलेसली, बिल्कुल एक ख्वाहिशमंदाना अंदाज में, टू एवरी वन आई न्यू, जितने भी लोगों को मैं जानता था, वॉट वुड यू डू, अगर आप क्या करते, इफ़ यू वर मी, आप मेरी जगह होते अगर, तो आप क्या करते अपने उस भाई के लिए जो हर वक्त शरारत करता और मुझे क्या कर देता है, फंसा देता है, और मैं जो है उसकी वजह से सज़ा पाता हूँ या फिर परेशानी में मुब्तला हो जाता हूँ। टू प्रूव दैट यू वर यू, अब अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा इलाज नहीं है, मजबूरन मुझे जो अपने भाई के तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पहले वाले में जो है पैदाइश के टाइम का इसमें जो है जिक्र किया गया, दूसरे वाले में जो है यहाँ पर स्कूल के ज़माने के बारे में बताया गया। अब तीसरे में हद होती है, देखो यहाँ पर तीसरे में क्या कह रहा है वो, आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, हमारा इतना क्लोज रिजेम्बलेंस, एक जैसा दिखना, हू बहू दिखना, रिजेम्बलेंस मतलब एक दूसरे का बिल्कुल परछाई, एक दूसरे की तरह बिल्कुल दिखना, एक दूसरे की शैडो बिल्कुल एक जैसे, हू बहू, उसको कहते हैं रिजेम्बलेंस। टर्न द टाइड, उस वक्त तूफान आया, उस वक्त जो है लहर ऊंची उठी, ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, जब मेरी घरेलू ज़िंदगी पर बात आ गई, फॉर सम हाउ, कहीं कहीं, माई इंटेंडेड ब्राइड, जिस ब्राइड को मैं चाहता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो गलती से मेरे ब्रदर की बीवी बन गई, और वो जो है मेरे ब्रदर की वाइफ बन गई। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम, और कई साल दर साल ऐसी जो है गलतियां होती रहीं। एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, ऐसी बेकार की फालतू गलतियां, मिस्टेक्स एब्सर्ड यानी फालतू बेकार, ऐसी गलतियां चलती रही थी। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, आखिरकार शादी हो गई, अब मरने पर बात आ गई पैदा होने से लेकर, द नेबर्स केम, हमारे पड़ोसी आए, हमारे घर आए पड़ोसी हमारे, ताकि वो मुझे दफनाएं, मुझे देखें। एंड बरीड ब्रदर जॉन, लेकिन बेवकूफ़ लोग क्या किया उन्होंने मुझे दफनाना छोड़कर वो मेरे भाई को दफनाने के लिए लेकर गए, और इस तरह से उन्होंने मेरी लाश को वहीं रख दिया, और बेचारे जिंदे मेरे भाई को जो है उठाकर वो जो है उन्होंने कब्र में डाल दिया। तो इस तरह से ये ट्विंस किस तरह से जो बड़ा चढ़ा कर यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है, महज ह्यूमरस एक जो है अंदाज बनाने के लिए, एक मज़ाहिया अंदाज में पेश करने के लिए, कि किस तरह से जो है हो सकता है, किस तरह से गलतियाँ हो सकती है, कि अगर कोई ट्विंस है तो कैसे जो है परेशानी में वो जो है मुब्तला होते हैं एक दूसरे की वजह से, और कैसे जो है एक बेचारे को जो है झेलना पड़ता है, और दूसरा जो उसमें मज़ा कर जाता है। तो इसी बात को बड़े मज़ाहिया अंदाज में पोएट ने पेश किया है। थैंक यू।